آداب ارزو عزیز طلبہ و طالبات اور احباب، آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل۔ میں ہوں علیم طاہر۔ آج ہم دیکھیں گے تاریخ اور سیاسیات 10ویں جماعت، سبق نمبر 4، بھارتی فنون لطیفہ کی تاریخ۔ دیکھیے گا فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے، یا بھارت میں بصری فنون کی روایت۔ بھارت میں فنون لطیفہ کی روایت، فنون لطیفہ اطلاقی فنون اور روزگار کے مواقع۔ یہ نکات تھے اہم جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے؟ ہر شخص کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تجربات اور ان سے حاصل شدہ علم نیز اپنے دلی جذبات سے دوسروں کو باخبر کرے۔ اس فطری جبلت کی تحریک سے جب کوئی حسین شے وجود میں لائی جاتی ہے تو اسے فن کہتے ہیں۔ فنی تخلیق کی بنیاد میں فنکار کا تخیل، احساسات، جذبات اور اس کی فنی مہارت کار فرما ہوتی ہے۔ بصری فنون اور فنون لطیفہ، فنون کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں، بصری فنون اور فنون لطیفہ۔ فنون لطیفہ کو حرکی فنون بھی کہتے ہیں۔ بصری فنون کا آغاز ما قبل و تاریخ عہد ہی میں ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت وہ فنی نمونے ہیں جو دنیا بھر میں پتھر کے زمانے کے غاروں سے حاصل ہوئے ہیں۔ عوامی فن اور فن لطیف۔ فن کی دو روایتیں، عوامی فن اور فن لطیف، کلاسیکی فن تسلیم کی جاتی ہیں۔ عوامی فن کی روایت پتھر کے زمانے سے مسلسل جاری ہے۔ اس کی تخلیق لوگوں کی روزمرہ زندگی کا جز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس روایت میں فنی اظہار میں بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ عوامی فن سماج گروہوں افراد کی عملی شرکت سے تخلیق پاتا ہے۔ فن لطیف کی تخلیق طے شدہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے طویل عرصے تک تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ طرز فن، ہر فنکار کا فن تخلیق کرنے کا اپنا طریقہ یعنی طرز ہوتا ہے۔ جب کوئی طریقہ روایت کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے تو اسے مخصوص طرز فن کہا جانے لگتا ہے۔ ہر تہذیب میں مختلف ادوار اور علاقے کی خصوصیات کے لحاظ سے فن ترقی کرتا ہے۔ ان اسالیب کی مدد سے اس تہذیب کے فنون کی تاریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھارت میں بصری فنون کی روایت۔ بصری فنون میں مصوری اور سنگ تراشی کا شمار ہوتا ہے۔ مصوری دو ابعادی ہوتی ہے، مثلاً قدرتی مناظر، اشیاء اور انسان کی تصویریں اور عمارتوں کے خاکے وغیرہ۔ تصویریں بنائی جاتی ہیں، اس کے لیے پتھر کی سلیں، دیواریں، کاغذ، سوتی یا ریشمی کپڑے کے ٹکڑے، مٹی کے برتن جیسے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اجنتا کے غار میں بودھی ستو پدم پانی کی دیواری تصویر۔ عوامی طرز مصوری۔ حجری عہد کے غاروں میں بنی ہوئی تصویریں کئی ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ بھارت میں مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، اترانچل، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ ریاستوں میں ایسے مقامات ہیں جہاں غاروں میں بنی ہوئی تصویریں موجود ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بھیم بیٹکا کے غاروں کی تصویریں مشہور ہیں۔ بھیم بیٹکا کو عالمی تہذیبی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ غار میں بنی ہوئی تصویروں میں انسانی شکل، جانور اور چند ہندی شکلیں شامل ہیں۔ عہد قدیم سے زراعت شروع ہونے تک کے زمانے میں ان تصویروں کے طرز اور ان کے موضوعات میں تبدیلیاں ہوتی گئی ہیں۔ تصویروں میں نئے جانوروں اور نباتات کو شامل کیا گیا ہے۔ نیز انسانی شکلوں کے خاکے بنانے کے طریقے اور رنگوں کے استعمال میں بھی فرق ہوتا گیا ہے۔ ان تصویروں میں قدرتی مادوں سے تیار کیے گئے کالے، لال، سفید رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف زمانوں میں لوگوں نے اپنے اطراف کے علم اور قدرتی سرچشموں کو استعمال کرنے کی تکنیک کو کس طرح فروغ دیا ہوگا۔ عوامی فن مصوری کی روایت غاروں کی تصویروں کی روایت سے اپنے رشتے کو بیان کرتی ہے۔ گھروں میں شادی بیاہ اور تہواروں کے موقع پر دیواروں پر تصویریں بنانے
आंगन में रंगोली तैयार करने और तस्वीरों के ज़रिए पुरानी कहानियाँ बयान करने के ज़रिए इलाकाई अवामी फ़न की रवायतों में तस्वीर कशी के मुख्तलिफ़ तर्ज वजूद में आए। बड़ी अहम जो है जानकारी हम तक रसाई हासिल कर रही है। इसमें जो है दिया है इसी सफ़े पे मराठा तर्ज मुसव्वरी की मिसाल के तौर पर मराठा तर्ज मुसव्वरी पर गौर किया जा सकता है। 17वीं सदी ईस्वी के निस्फ़ आखिर से मराठा तर्ज मुसव्वरी का आगाज़ हुआ। इस तर्ज की तस्वीरें रंगीन हैं, जो दीवारी तस्वीर और कलमी मुसव्वदों में मुसग्गर छोटी तस्वीर की शक्ल में पाई जाती हैं। वाई, मेनुली, सतारा जैसे मकामात पर पुराने वाड़ों, बड़ी इमारतों में मराठा तर्ज मुसव्वरी की चंद दीवारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मराठा तर्ज मुसव्वरी पर राजपूत तर्ज मुसव्वरी के असरात दिखाई देते हैं। किसी मखसूस तर्ज मुसव्वरी की इब्तिदा जिस ज़माने में हुई है, उस ज़माने के रहन सहन, पोशाक, रस्म रिवाज का मुताला इस तर्ज की तस्वीरों की मदद से किया जा सकता है। उसी तरीके से क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र में वारली तस्वीरों की रिवायत और पिंगुल या चित्रकथी की रिवायत अवामी फ़न मुसव्वरी की नादिर मिसालें हैं। ज़िला थाना में वारली फ़न मुसव्वरी को मकबूल बनाने में जोया सोमयामशे का बड़ा हाथ है। इन्हें इनकी वारली तस्वीरों के लिए मुल्की और आलमी सतह पर कई इनामात हासिल हुए हैं। 2011 में इन्हें पद्मश्री खिताब से नवाजा गया। ये जान लीजिए, 12वीं सदी ईस्वी में चालुक्य राजा सोमेश्वर की किताब मानसुल्लास या इबिल्सी नारतार्थ चिंतामणि में चित्रकथी रिवायत का जिक्र मिलता है। इससे इस रिवायत की कदामत का अंदाज़ा होता है। कठपुतलियों या तस्वीरों की मदद से रामायण महाभारत की कहानियाँ बयान करने की रिवायत से मुराद चित्रकथी यानी चित्रकथा रिवायत है। इसे कोकन में कडाल के करीब पिंगली गांव के ठाकरा आदिवासी समाज ने महफूज रखा है। रिवायत की तस्वीर कागज़ पर बनाकर इनमें कुदरती रंग भरे गए हैं। उमूमन आमतौर पर एक कहानी को बयान करने के लिए 30 से 50 तस्वीर इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ कहानियाँ बयान करने के लिए इस तरह की तस्वीरें नस्ल दर नस्ल चली आ रही कोठियों को चित्रकथी खानदानों में संभाल कर रखा गया। इस मिटती हुई रवायत के अहया के लिए हुकूमत और फनकार कोशिश कर रहे हैं। लतीफ़ फ़न मुसव्वरी। कदीम भारतीय अदब में मुख्तलिफ फ़नून के बारे में तमाम पहलुओं से गौर किया गया है। इनमें कुल 64 यानी 64 फ़नून का जिक्र है। इसमें फ़न मुसव्वरी का जिक्र आलेखीम या आलेख्य विद्या इल्म खाका निगारी के नाम से किया गया है। इल्म खाका निगारी के मुसद्दस यानी 6 अहम पहलू हैं। कदीम भारतीयों ने इन पर इंतहाई बारीकी से गौर व खौस किया था। इसमें रूप, भेद, मुख्तलिफ शक्लें, तनासुब, मुतनासिब साख्त और पैमाइश, जज्बा, चेहरे से तासुरात का इजहार, हुस्न, एहसास हुस्न, मुशाबहत, हकीकत से करीब तस्वीर कशी और वर्णिका भंग रंगों का एहतमाम शामिल हैं। मुख्तलिफ मजहबी जमातों की मुक़द्दस किताबों, पुरानों और फ़न तामीरात की किताबों में मंदिर या मंदर के तामीर के ज़िम्न में तस्वीर कशी और संग तराशी का जिक्र पाया जाता है। मखतूतात में मुसग्गर तस्वीर, कलमी मुसव्वदों में छोटी जसामत की तस्वीरों पर ईरानी तर्ज का असर था। जुनूब में मुस्लिम हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती दक्कनी तर्ज की मुसग्गर तस्वीरें बनाई जाने लगीं। मुग़ल शहनशाह अकबर के दौरे हुकूमत में ईरानी और भारतीय मुसव्विरों के तर्ज की आमेज़िश से मुग़ल तर्ज की मुसग्गर तस्वीर कशी का आगाज़ हुआ। इसी तरह यूरोपी तर्ज मुसव्वरी बरतानवी दौरे हुकूमत में भारतीय तर्ज मुसव्वरी पर मगरबी तर्ज मुसव्वरी का असर दिखाई देता है। पूना के शनिवारवाड़ा में सवाई माधवराव पेशवा के अहद में एक स्कॉट्स मुसव्विर जेम्स वेल्स की क़यादत में एक मदरसे फ़न स्कूल ऑफ आर्ट कायम किया गया था। इसने सवाई माधवराव और नाना फडणवीस की तस्वीरें बनाई थीं। वेल्स के साथ काम करने वाले एक मराठा मुसव्विर
गंगा राम ताम्बट का खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहिए। उन्होंने एलोरा और कार्ला के गारों में तस्वीरें बनाई थीं। इनकी कई तस्वीरें अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट में महफूज हैं। बहुत बड़ी बात है। एशिया की हूबहू तस्वीर कशी मगरबी तर्ज मुसव्वरी की अहम खसूसियत समझी जाती है। मुंबई में 1857 यानी 1857 में कायम करदा जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री मगरबी तर्ज मुसव्वरी की तरबियत देने वाले आर्ट स्कूल में कई नामी ग्रामी मुसव्विर हो गुजरे हैं। इनमें से पेस्टन जी बोमन जी ने अजंता के गारों की तस्वीरों के मॉडल बनाने का काम किया। फ़न संग तराशी सह-इबादी फ़न है। मसलन मूर्ति, मुजस्समा, मुनक्कश बर्तन और अशिया, पत्थर की सिलें तराशी या कुंदा की जाती हैं। इसके लिए पत्थर, धात, मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए पत्थर, धात, मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। एलोरा का कैलाश गार पत्थर की सालिम सिल से तराशा हुआ बेनज़ीर मुजस्समा है। सारनाथ में अशोक की लाट के ऊपरी हिस्से में 4 शेरों के मुजस्समे पर मबनी तस्वीर भारत का कौमी निशान है। उसके बाद अवामी फ़न संग तराशी। मुसव्वरी की तरह संग तराशी का फ़न भी हजरी अहद से पाया जाता है। यूँ भी कह सकते हैं कि पत्थर के औजार बनाने का आगाज़ भी एक तरह से संग तराशी के फ़न का आगाज़ है। भारत में मज़हबी मौक़े पर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करने या इन्हें नज़र करने का रिवाज हड़प्पा तहज़ीब के ज़माने ही से चला आ रहा है। यह रिवाज आज भी बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसी कई रियासतों में पाया जाता है। महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली गणेश की मूर्तियां, गोरी के मखोटे, बैलों के पोला त्यौहार के लिए तैयार किए जाने वाले मिट्टी के बैल, अजदाद की याद में कायम किए जाने वाले लकड़ी के मखोटे का खंबा, संगी यादगारें, आदिवासी घरों में अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए कोठरियाँ वगैरह फ़न संग तराशी की अवामी रिवायत के गवाह हैं। क्लासिकी फ़न संग तराशी हड़प्पा तहज़ीब की मोहरें, पत्थर और कांसे के मुजस्समे 5000 साल या उससे ज़्यादा कदीम भारतीय मुजस्समा साजी की रिवायत की गवाह है। ऐसा समझा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के अहद में पत्थर के सुतूनों को तराश कर सही मानों में संगी मुजस्समे तैयार करने का आगाज़ हुआ था। मध्य प्रदेश में सांची और भारहूत का स्तूप पहली बार अशोक के ज़माने में तामीर किया गया। इस पर दीदाजेब संगी सिलों की सजावट के बाद के दौर यानी दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में किए जाने का कयास है। बुद्ध मज़हब भारत के बाहर दूर तक फैला, इस वजह से इन मुल्कों में भी स्तूप तामीर करने की रवायत का आगाज़ हुआ। इंडोनेशिया में बोरोबुदुर के मकाम पर तामीर करदा स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। इसे 8वीं या 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। यूनेस्को ने 1991 यानी 1991 में बोरोबुदुर को आलमी विरसे का दर्जा दिया। भारतीय इल्म मुजस्समा साजी अफ़गानिस्तान और आसपास के इलाकों में दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में फ़न संग तराशी का कंधार तर्ज वजूद में आया, जिस पर ईरानी और यूनानी असरात थे। पहली से तीसरी सदी ईस्वी यानी कुशान के अहद में मुकामी तर्ज फ़न और कंधार तर्ज के इम्तिजाज से संग तराशी का मथुरा तर्ज वजूद में आया। इस तर्ज ने भारतीय इल्म मुजस्समा साजी की बुनियाद डाली। देवी देवताओं की तस्वीरें इस्तेमाल करने का ख्याल पहली बार कुशान सिक्कों पर दिखाई देता है। गुप्त दौरे हुकूमत में भारतीय इल्म मुजस्समा साजी के उसूल बनाए गए और फ़न मुजस्समा साजी के मयार का तयन किया गया। 9वीं से 13वीं सदी ईस्वी के दौरान चोल राजाओं की सरपरस्ती में जनूबी भारत में कांसे की मूर्तियां बनाने का फ़न वजूद में आया और शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने लगीं। फ़न तामीरात और मुजस्समा साजी भारत में कई तराशीदा गार पाए जाते हैं। भारत में तराशीदा गारों की रिवायत
दूसरी पहली सदी क़ब्ल मसीह में शुरू हुई। तकनीकी लिहाज से मुकम्मल गार तामीरात और तराशीदा मुजस्समों का मजमूई नमूना होता है। बाबुद्दाखला, अंदरूनी सुतून और मूर्ति संग तराशी के उम्दा नमूने होते हैं। दीवारों और छत में की गई उम्दा तस्वीर कशी के काम बाज़ गारों में आज भी किसी न किसी हद तक बाकी हैं। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के गारों को 1983 यानी 1983 में आलमी विरसे का दर्जा दिया गया है। भारत में मंदिरों की तामीर का आगाज़ 4वीं सदी ईस्वी में गुप्त अहद हुकूमत में हुआ। गुप्त दौर की इब्तिदा में मूर्ति रखने की जगह गा भारा और इसके बाहर 4 सुतून पर मुश्तमिल बरामदा बस यही मंदिर या मंदिर की शक्ल थी। एलोरा के कैलाश मंदिर की शानदार बनावट से ये बात समझ में आती है कि 8वीं सदी ईस्वी तक भारत में मंदिर की तामीर का फ़न पूरी तरह तरक्की पा चुका था। अहद वस्ता तक भारतीय मंदिरों के फ़न तामीर के कई तर्ज वजूद में आ चुके थे। तर्ज का तयन कलश की मखसूस साख्त के मुताबिक किया जाता है। इनमें शुमाली भारत में नागर और जनूबी भारत में द्राविड़ ये 2 तर्ज अहम समझे जाते हैं। इन दोनों के इम्तिजाज से वजूद में आने वाले मखलूत तर्ज को वयसर कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाने वाले भौमिज तर्ज के मंदिर और नागर तर्ज के मंदिर की साख्त में यकसानियत पाई जाती है। भौमिज तर्ज में मंदिर की बुनियाद से बतदरीज छोटे होते जाने वाले कलश की शक्ल ऊपरी सिरे तक बनी होती है। इस वजह से कलश की बनावट बुनियाद से ऊपरी सिरे तक यकसा दिखाई देती है। इसमें अहद वस्ता के भारत में मुस्लिम दौर हुकूमत में ईरानी वस्ता, एशियाई, अरबी और माक़बल इस्लाम भारतीय तर्ज तामीर का इम्तिजाज अमल में आया। इसके असर से भारत में मुस्लिम तर्ज तामीर वजूद में आया। कई काबिल दीद इमारतें तामीर की गईं। दिल्ली के करीब महरूली के मकाम पर कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल और बीजापुर में गोल गुंबद मुस्लिम तर्ज तामीर का शोहरा आफाक मिसालें हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 12वीं सदी ईस्वी के ज़माने में कुतुब मीनार की तामीर शुरू हुई और सुल्तान अल्तमश 13वीं सदी ईस्वी के दौर में तामीरी काम मुकम्मल हुआ। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी 73 मीटर 240 फीट है, यानी 240 फीट है। कुतुब मीनार इमारतों के जिस मजमूए कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है उसे यूनेस्को के आलमी विरसे का दर्जा दिया है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल तामीर किया है। ताजमहल को भारत में मुस्लिम फ़न तामीर की खूबसूरती की अहम मिसाल समझा जाता है। दुनिया भर में मशहूर इस इमारत को यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है। 17वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया बीजापुर का गोल गुंबद इंतहाई शानदार इमारत है जिसमें मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। इस गुंबद की अंदरूनी जानिब गोल साहिबान है जिसकी वजह से इस इमारत को गोल गुंबद कहा जाता है। इस साहिबान में खड़े होकर आहिस्ता से कुछ कहें तो भी वो आवाज़ सब तरफ सुनाई देती है। जोर से ताली बजाएं तो इसकी सदाए बाज़गश्त कई बार गूंजती है। भारत में बरतानवी हुकूमत कायम होने के बाद एक नया तर्ज तामीर वजूद में आया। इसे इंडो गोथक तर्ज तामीर कहा जाता है। बरतानवी दौर में तामीर किए गए चर्च, सरकारी दफातर, आला अफसरों के रिहायशी मकानात, रेलवे स्टेशन जैसी इमारतों में ये तर्ज तामीर दिखाई देता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की इमारत इस तर्ज का उम्दा नमूना है जिसे यूनेस्को ने आलमी विरसे के मकामात की फहरिस्त में शामिल किया है। यहाँ पर बड़ी अहम मालूमात भी हमको मिलती है। ये जान लीजिए, हेमाड़पंथी मंदिर या मंदिर की तामीर मुरब्बानुमा और तारानुमा 2 किस्म की पाई जाती है। तारानुमा मंदिर की तामीर में मंदिर की बैरूनी दीवार को कई गोशों में तकसीम कर दिया जाता है। इस वजह से इन दीवारों और इन पर बने हुए मुजस्समों पर पड़ने वाली रोशनी और साए का बड़ा खूबसूरत असर दिखाई देता है। हेमाड़पंथी मंदिरों की अहम खुसूसियत दीवार के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल न करना है। पत्थरों ही में गहरे शगाफ और शगाफ के बराबर लंबूतरे सिरे बनाकर पत्थरों को एक दूसरे में मजबूती से बिठा दिया जाता था और इनकी मदद से दीवार बनाई जाती थी। मुंबई के करीब अंबरनाथ में अमरेश्वर, नासिक के करीब
सिन्नर में गोंदेश्वर और ज़िला हिंगोली में ओंडा नागनाथ हेमाड़पंथी मंदिरों की उम्दा मिसालें हैं। इनकी तामीर तारे की शक्ल में हुई है। इनके अलावा महाराष्ट्र के कई मकामात पर हेमाड़पंथी मंदिर नज़र आते हैं। यह अहम मालूमात हम तक पहुँची। उसके बाद भारत में फ़नून लतीफ़ा की रिवायत। अवामी फ़नून की रिवायत। भारत के हर इलाके में अवामी गीत, अवामी साज, अवामी रक़्स, अवामी नाटक की मुतनव्वे रिवायत पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी अवामी फ़नून की कई रिवायतें मौजूद हैं। ये अवामी फ़न मजहबी त्योहारों और समाजी ज़िंदगी के अटूट हिस्से की हैसियत से वजूद में आए हैं। होली नाच, तारपा नाच, कोकण में दशा अवतार, पवाड़ा, कीर्तन, जागर, गोंधल चंद इम्तियाजी मिसालें हैं। क्लासिकी फ़नून की रिवायत। क्लासिकी फ़नून की रिवायत में भारत अवामी फ़नून की तरह क्लासिकी फ़नून के उम्दा नमूनों से भी मालामाल है। भरत मनी की तहरीर करदा नाट्य शास्त्र सबसे कदीम किताब समझी जाती है, जिसमें गाने बजाने, रक़्स, नाटक जैसे फ़नून के बारे में तफसील से बयान किया गया है। भारतीय फ़नून लतीफ़ा में श्रृंगार, आराइश, हास्य, मुसर्रत, बीभत्स, गैर मुहज़्ज़ब, रूदर या रौदर, गज़बनाक, करुणा, अलमनाक, वीर, बहादुरी, भयानक, डरावना, भय पैदा करने वाला, अद्भुत, हैरत अंगेज और शांत, पुरसुकून जैसे 9 रसों की पेशकश को बुनियादी अहमियत हासिल है। 9 रसों की पेशकश को बुनियादी अहमियत हासिल है। भारतीय बाशिंदे बैरूनी मुल्कों के लोगों से मुसलसल राब्ते में रहे और इस तरह इन फ़नून की पेशकश में कई तर्ज शामिल होते रहे। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल होते गए। क्लासिकी गायकी, साज, रक़्स के मुख्तलिफ तर्ज और इन तर्ज़ों को महफूज करने के लिए घराने वजूद में आए। भारत में क्लासिकी गायकी की 2 अहम शाखें हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत हैं। इसी तरह क्लासिकी और नीम क्लासिकी का फ़र्क भी है। नीम क्लासिकी गायकी में अवामी गीत के कई तर्ज शामिल हो गए हैं। शुमाली भारत का कथक, महाराष्ट्र की लावनी, उड़ीसा की ओडिसी, तमिलनाडु के भरतनाट्यम, आंध्रा की कच्ची पड़ी, केरला की कथकली और मोहिनी एटम रक़्स की इन किस्मों को पेश करने में क्लासिकी गायकी, साज बजाने और रक़्स का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। आज़ाद भारत में क्लासिकी मौसीकी और रक़्स को आम कदरदानों तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौसीकी रक़्स की तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। इनसे महसूस होने के लिए न सिर्फ भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से बल्कि गैर मुल्कों से भी कदरदान आते हैं। पुणे में हर साल सवाई गंदरू के नाम से होने वाला जश्न मौसीकी बहुत मशहूर है। मौजूदा ज़माने में भारतीय संगीत के शोबे में मखसूस तर्ज या मखसूस घराने की हदें पार करके नए तजुर्बात का रुझान परवान चढ़ रहा है। इसमें मगरिबी मौसीकी और मगरिबी रक़्स को भारतीय संगीत से जोड़ने की कोशिश भी कार फरमा है। इस तरह नया तर्ज ईजाद करने वाले फ़नकारों में उदय शंकर का नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। उन्होंने भारतीय क्लासिकी रक़्स और यूरोपीय थिएटर में पेश किए जाने वाले ओपेरा गन्नाई ड्रामा की रिवायत को मिला दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने अंदाज में अवामी रक़्स के मुख्तलिफ तर्ज को अहम मकाम दिया। इस तरह भारतीय फ़नून लतीफ़ा को पेश करने का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही अमल भारतीय बसरी फ़नून के सिलसिले में भी मुसलसल जारी है। उसके बाद फ़नून, इतलाक़ी फ़नून और रोज़गार के मौक़े। फ़नून की तारीख़ उलूम की एक शाख है। इस शोबे में तहक़ीक़ और रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं। नंबर 1, फ़न की तारीख़ का मुताला करने वाले सहाफ़त के शोबे में काम कर सकते हैं। नंबर 2, फ़नकाराना अशिया की ख़रीद फ़रोख्त की एक अलग दुनिया है, जहाँ फ़नकाराना अशिया की कदर कीमत का तयन करने के लिए इस बात की जांच करने की ज़रूरत होती है कि वो शय नकली तो नहीं है। इसके लिए ऐसे माहिरीन की ज़रूरत होती है जिन्होंने फ़न की तारीख़ का गहरा मुताला किया हो। और नंबर 3, तहज़ीबी विरसों की देखभाल और निगहदाश्त और तहज़ीबी सियाहत के नए शोबे वजूद में आए हैं। इन शोबों में भी फ़न का मुताला करने वालों के लिए मुख्तलिफ पेशा वराना मौक़े मुयस्सर हैं। इनमें म्यूज़ियम और रिकॉर्ड रूम,
लाइब्रेरी और मवासलाती इत्तलाती टेक्नोलॉजी, आसार कदीमा की तहकीक और भारतीय उलूम चंद अहम शोबे हैं। इतलाक़ी अमली फ़न देखते हैं। बसरी और फ़नून लतीफ़ा के शोबे में फ़न की तख्लीक महज कदरदानों के लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए की जाती है। फ़न के तमाम शोबों में फ़नकारों का यही अव्वलीन मकसद होता है। इसके अलावा फ़नकाराना तख्लीक और अफादियत को हम आहंग करके कई अक़साम की तख्लीक़ात पेश की जाती हैं। इस तरह अफादियत के मकसद के पेश नज़र फ़न तख्लीक करना अमली या इत्तलाक़ी फ़न है। सनाती और इश्तिहारात के शोबे नेज़ घरों की सजावट और आराइशी अशिया, स्टेज के लिए कास्ट्यूम यानी पोशाक, फिल्म और टीवी पर प्रोग्राम पेश करने के लिए आर्ट डायरेक्टर, इशाअत और तबात के शोबे में किताबें, रसायल, अखबारात को तरतीब देना, आराइश और खुशखती, तहनीती कार्ड, दावतनामे, ज़ाती अशियाए तहरीर, तहाइफ वगैरह मुख्तलिफ़ अशिया के लिए इतलाक़ी फ़नून के शोबे की मालूमात रखने वालों की ज़रूरत होती है। नंबर 2, फ़न तामीर, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के शोबे भी अमली फ़न के ज़मरे में आते हैं। मौजूदा ज़माने में कंप्यूटर पर तैयार की गई जामिद मुतहर्रिक तस्वीरें, नक्श और खाके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका शुमार भी अमली फ़न में होता है। ज़ेवरात, कीमती धातों की फ़नकाराना अशिया, रंगीन नक्श निगार वाले मिट्टी के बर्तन, बांस और बेद की अशिया, शीशे की फ़नकाराना अशिया, खूबसूरत कपड़े और लिबास वगैरह भी अमली फ़नून की वसी फहरिस्त में शामिल हैं। मज़कूरा बाला शोबे में ज़हनी सतह पर कोई तस्वीर पेश करके इसे अमली जामा पहनाने तक कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। हर मरहले पर तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफराद की बड़े पैमाने पर ज़रूरत होती है। फ़नकाराना अशिया तैयार करने के अमल से बाज़ मखसूस तहज़ीबी रवायतें मरबूत होती हैं। इस शोबे में तरीक़े अमल के हर मरहले के इर्तिका की तारीख़ होती है। तरबियती कोर्स में फ़नकाराना अशिया के पैदावारी अमल की सनती तहज़ीबी रवायतों की तारीख़ भी शामिल होती है। मज़कूरा बाला शोबों में तकनीकी और पेशा वराना तालीम देने वाले कई इदारे भारत में हैं। गुजरात में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद में इस किस्म की तरबियत देने वाला दुनिया के मशहूर इदारों में से एक तस्लीम किया जाता है। इस इदारे ने 2015 यानी 2015 में एक ऑनलाइन निसाब शुरू किया है। अगले सबक में हम ज़राए अबलाग और तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसमें एक अहम मालूमात और थी कि क्या आप जानते हैं बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुवम ने फ़ारसी ज़बान में किताब नौरस लिखी है। इस किताब का ताल्लुक़ मौसीकी के इल्म से है, जिसमें गायकी के लिए मौजू गीत, धरोपद तर्ज गायकी के मुताबिक गीत शामिल हैं जो आला दर्जे की शायरी का ज़ौक़ रखने वालों के लिए एक अहम किताब है। इस किताब को डॉक्टर अरुण प्रभु ने मराठी में तर्जुमा किया है। इस किताब के सरवरक पर दिए हुए दोहरे दोहे का तर्जुमा हस्ब ज़ैल है कि ऐ सरस्वती माँ, तू दुनिया के लिए रोशनी और हमा सिफत है। इब्राहिम पर तेरा करम हो जाए तो तेरे आशीर्वाद से नौ रस के गीत ज़माना दर ज़माना ज़िंदा रहेंगे। यहीं पर हम देखते हैं कि अब ये जो सबक था ये यहीं पर ख़त्म होता है और बड़ा दिलचस्प सबक था भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख़। आइंदा हम इस पर यके बाद दीगरे हम गुफ्तगू करेंगे, मुबाहिसे भी होते रहेंगे और तो और हम मश्क भी करेंगे आइंदा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब अलीम ताहिर को दीजिए इजाज़त और जो लोग जो अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अहबाब हमसे जुड़ रहे हैं उनसे एक गुजारिश है कि वो हमारा हौसला बढ़ाएं। इस चैनल को अलीम ताहिर पोएट्री इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। खुदा हाफिज़।